Okay, so recording is started. So everyone, DHTML morning, and we are going to know a new type of code that is called CSS, Cascading Style Sheets. Okay, so before understanding the code, we need to know CSS properly. Okay, then only we can write code and we can understand the code. Okay. Okay, Prasan, but Prasan, I think it is your name. Ah, okay, Khushi. Got it. Why it is happening? Are you not using BJBLMS app? I hope you are using. Okay. Good morning, Deshna. Sure. Done. Okay. So what I was telling that बहुत ही सिंपल सी एक बात है कि CSS के कोडिंग को समझने के लिए हमें CSS को थोड़ा अच्छे से समझना होगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट कोड बताऊंगा तो फिर वो बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, ऐसा होगा. तो लेट अस नो मोर अबाउट CSS. ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड, वी हैव कम टू नो दैट कि W3C कंपनी जो है, इन्होंने CSS को डेवलप किया. ठीक है. और अगेन आई एम टेलिंग यू दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डिफरेंट. CSS is not a programming language, it is a styling language. टू स्टाइल योर वेब पेज, आपके वेब पेज को स्टाइलिश बनाने के लिए इस लैंग्वेज का यूज किया जाता है. Okay, so CSS is styling language. Okay, and we use CSS to style our web page. Shreyansh, write your full name, because there are three Shreyans. Shreyansh Jain 314. Okay. And stop doing this, beta. We Good morning, sir. Just a minute, students. Okay, done. So we came to know that W3C company developed CSS, cascading style sheet language, styling language. चलो आगे बढ़ते हैं. और हमने ये भी जाना कि what is static web page and dynamic web page. Okay, and of course there will be a question from this in board for sure. Okay, what is static web page and dynamic web page? You can remember, I have already shared with you. Dynamic web page, the information or content, it is not static. Static means stationary, it changes. जैसे फेसबुक का वेब पेज है ना, वो तो हमेशा चेंज होते रहता है, नए नए अपलोड आते रहता है, तो वो चेंज होते रहता है. तो दैट इज डायनामिक वेब पेज. और आप जो वेब पेज क्रिएट कर रहे हो अपने घर पे, दैट इज स्टैटिक वेब पेज. ठीक है. Until you change the coding, there is no change in your web page. So that's why it is called static web page. Okay, so I think this is so clear to you. Let me move to the next slide. Okay, we came to know DHTML. I think it is in your mind. What is DHTML? Dynamic Yes, hypertext sir. markup language. Dynamic hypertext marking language. Markup language. So what is the speciality of DHTML? You can just read the last two lines in red color. DHTML helps in creating dynamic web pages that are animated, interactive, and responsive to users' actions. Responsive का मतलब, when you search something in the web page gives you result, that is called responsive. Okay. Darshan, yes, this PPT actually not completed. One or two slides are left. Definitely, I will upload this. Okay.
Ah, yes, Viram, we will be creating, but in your syllabus, not much is there about dynamic HTML. Let us see how much we can learn. Okay, next, components of HTML. ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा याद कर लो तो याद आ जाएगा। HTML तो बेसिक कंपोनेंट है, क्योंकि आप CSS को अप्लाई कहाँ करोगे? वेयर यू विल अप्लाई द कोड ऑफ CSS, ऑफ कोर्स इन द HTML एडिटर, दैट मीन्स नोटपैड। हम जो नोटपैड में HTML डिजाइन कर रहे हैं वहीं पर CSS का कोडिंग लिखा जाएगा। CSS वही तो CSS मतलब कब से हम लोग समझ रहे हैं कि भाई एक लैंग्वेज है, लेकिन अभी तक हमने यूज नहीं किया है, करेंगे। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू यूज स्क्रिप्टिंग। इसकी बड़ी कोडिंग रहेगी कि एकदम छोटी सी? कोडिंग तो वैसे ही है जैसे HTML कोडिंग है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब जैसे HTML का कोडिंग होता है वैसा इसका कोडिंग नहीं होता है। बाकी लैंग्वेज तो सेम ही है दोनों का। ठीक है, पता करते हैं ना, कोई बात नहीं। अभी अभी आज आपको पता चल जाएगा कोडिंग कैसा होता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट, स्क्रिप्टिंग और DOM है, ये भी मैंने समझा दिया था। DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि जैसे आप फेसबुक ओपन करते हो तो पहले लॉगिन पेज आता है। लॉगिन पेज के बाद आपका टाइमलाइन आता है। जैसे आप लॉगिन करते हो तो आपके टाइमलाइन आते हैं। फिर आप अपने प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करते हो तो आप अकाउंट पे चले जाते हो। तो ये जो वेब पेजेस का स्टेयर्स बोल सकते हो, लेयर्स है, उसे हायरार्की कहते हैं। तो उस हायरार्की को मेंटेन करने का काम DOM का है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, और एक बात, HTML बनाने के लिए सिर्फ नोटपैड ही नहीं है बेटा, बहुत सारी चीज है। ठीक है, PHP है, उसके बाद विजविग है। और आपको याद होगा, व्हाट यू सी व्हाट यू गेट, विजविग बहुत पहले पढ़ाया था। चलो याद है कि नहीं, आई होप याद होगा। सो नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू नो, एडवांटेजेस ऑफ कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। जल्दी से देख लेते हैं इसको, क्या क्या एडवांटेज है। तो मैं पॉइंट को पहले पढ़ लेता हूँ। CSS सेव्स टाइम, ओके। Page download faster, okay, that is very good. Easy maintenance, wow. Superior style to HTML, awesome. And multiple device compatibility, great. So you can see there are many advantages of CSS. पहला तो सेव्स टाइम है। सेव्स टाइम कैसे होता है, मतलब जैसे कि आपको याद होगा, टेबल में हम लोग फॉन्ट कलर चेंज करना चाह रहे थे, है ना, याद है ना? तो हर बार TR में हमको लिखना पड़ रहा था, टेबल रो में फॉन्ट कलर फॉन्ट कलर फॉन्ट कलर। तो इधर बार बार ऐसे लिखने से टाइम जाएगा ना। CSS आपको वो टाइम बचाएगा। आप CSS में एक बार आप कलर डाल दो, फॉन्ट कलर, तो वो टेबल के हर एक डेटा में ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स यू नीड नॉट टू रिपीट सेम काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग इन योर HTML वेब पेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पेज डाउनलोड फास्टर। यस, अगर आपका नेट बहुत पावरफुल नहीं है, आई मीन इट इज नॉट सो फास्ट, देन ओनली यू कैन एक्सेस द वेब पेज ऑफ CSS। क्यों? उसका रीजन यही है कि भाई जिस वेब पेज के पीछे जितना ज्यादा कोडिंग होगा, उस पेज को नेट पे अपलोड होने में भी उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अब CSS क्या करता है, कोडिंग को ऑप्टिमाइज कर देता है। जहां पर 10 लाइन का कोडिंग था, हो सकता है वो आपके 2 लाइन में हो जाए। तो इससे क्या होता है, वो वेब पेज लाइट होता है और उसे जल्दी इंटरनेट पे एक्सेस किया जा सकता है ना। जैसे आजकल ऐप में भी आ रहा है ना, लाइट, LITE, फेसबुक लाइट। एक फेसबुक मेन ओरिजिनल वर्जन है और एक फेसबुक लाइट है। तो फेसबुक लाइट जो है वो 2G में भी काम करेगा। ठीक है, 3G में तो करेगा ही, ऑफकोर्स 4G में तो और अच्छे से करेगा। So that is called download faster. Next, easy maintenance. What does mean by easy maintenance? Very simple. Suppose you want to change the look of your web page. ठीक है, आपने एक वेब पेज डिजाइन किया CSS में और आप उसका लुक चेंज करना चाहते हैं, तो आप कहीं भी बैठ के उसे चेंज कर सकते हैं और वो आपको इजी रहेगा। क्यों इजी रहेगा? क्योंकि आपको क्या है, ज्यादा कोडिंग पे ध्यान नहीं देना ना। आपने CSS में कोडिंग किया, बस आपको वही वही देखना है। ठीक है, you just need to modify the coding of CSS, not for entire web page। तो एक इजी मेंटेनेंस हुआ, है कि नहीं?
इसके बाद क्या है, सुपीरियर स्टाइल्स टू HTML। अरे भैया क्या बात है, सुपीरियर स्टाइल। भाई वी नो दैट जो स्टाइलिश होते हैं लोग उन्हीं पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो आपके वेब पेज जितना अट्रैक्टिव होगा विजुअली, उतनी विजुअली एंड ऑफ कोर्स योर वेबसाइट मस्ट बी इंफॉर्मेटिव, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स यूजर फ्रेंडली। ये तीन चीजें अगर आपके वेब पेज में है तो लोग बार बार विजिट करेंगे आपके वेब पेज में, ठीक है। तो ये जो स्टाइल है इसे और कितना बेहतर बना सकते हैं वो, उसके लिए आपको CSS हेल्प करता है। नेक्स्ट, मल्टी डिवाइस कंपैटिबिलिटी। मल्टी डिवाइस की बात करें तो भाई लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, PDA और टैब, और क्या है, जो इतने भी डिवाइसेस है जिसमें नेट वर्क करता है, उन सब में CSS का बनाया हुआ वेब पेज को आप एक्सेस कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपने HTML बनाया, वो मोजिला फायरफॉक्स में तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन गूगल क्रोम में ठीक से चल नहीं रहा है, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर में अच्छे से नहीं चल रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम जो है नहीं आता है अगर आप CSS पे बनाओगे, क्योंकि क्योंकि उसका वेब पेज कंपैटिबल होता है। तो ये तो हो गया एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, because we know that everything has advantages along with disadvantages। तो डिसएडवांटेजेस में क्या क्या है, एक बार हम लोग पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है, चलो इस बार कोई पढ़ना चाहता है क्या पॉइंट्स को? एनीवन इज देयर विलिंगली टू रीड द पॉइंट्स एंड कैन, अच्छा नंदिका, यस बेटा यू कैन रीड। Disadvantages of CSS. In spite of being an easy and effective technique to manage aesthetic aspects of a page, CSS has its own limitations, which are as follows. Inconsistent browser support. Different browsers have distinct Nandika, just levels read of the point. compliance with CSS. Okay, yes, next point. Yes, sir. Some browsers are supported. Acha, like that should not explanation, sir. Just you need to read the points. I will ask someone else to explain actually. Yes, everyone, it's Yes, sir. yes, Okay. students, Nandika is Some reading, that doesn't mean browsers are that. supported. Acha, like that I should not read the explanation, sir. Okay, sir. Are you done? Actually, I think there is network problem, Nandika, over here. So voice was lagging. Okay. So let us. Is it now audible? Sir, But may I? Okay, sir. there is fluctuation. I hope. Sir, is it now? Sir, may I? Who is that? I think it is Divyansh. Sir, Viram. Acha, Viram. Okay, Akshat So has now also raised hand. Yes, Nandika, still there is problem. Okay, Sir, if you can hear me, then okay. If I am audible to you, then it is okay. Yes, Viram, would you like? Yes, sir. What do you think? Sir, we have to read, na? Okay, first you read then. Okay, okay, carry on. Yes, sir. Disadvantage of CSS. In spite of being an easy and effective technology to manipulate the aesthetic act of web page, CSS has its limitation, which are as follows. First, inconsistent browser support. Different browsers have You need distinct to read level the of point only. complication with CSS, like some features. Viram, just read the points. Okay, sir. Okay. Inconsistent browser support. Then, Second, yes, sir. Yes, sir. Restricted backgrounds per element, lack of variables. Sir, that last point. Security threat. Yes, sir. Security threat. Vertical control limitations. okay, okay, nice, nice, nice. So now all of you pay attention. I think you have understood, many of you have understood the points. एक बार फिर भी समझ लेते हैं. Inconsistent browser support. That means what कि
ये कंपैटिबल है। देखो, तो पहले हम लोग एडवांटेजेस में हमने क्या पता किया कि वो मल्टीपल डिवाइस में कंपैटिबल है, लेकिन कंपैटिबल होना और एग्जैक्टली जैसा है रिप्रेजेंट होना उसमें थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कंसिस्टेंट मतलब ठीक है, हमेशा नहीं यूज करते। सीएसएस में आप जो वेब पेज डिजाइन करोगे वो जो ब्राउजर टू ब्राउजर है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में अच्छा स्मूथ चल रहा है हो सकता है, लेकिन मोजिला फायरफॉक्स में हो सकता है कहीं कुछ एलिमेंट शो नहीं हो रहा है, या फिर कई बार आपके साथ होता है ना, जैसे जेपीईजी लिखते हो तो नहीं दिखता है पिक्चर, उसको फिर आप जेपीईजी लिखते हो तो फिर वो पिक्चर दिखने लगता है। ऐसा कईयों के साथ हुआ होगा, आई होप। ठीक है, क्या बोलते, हुआ है ना ऐसा, हुआ होगा। तो वो जो है उसको हम लोग कह सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट ब्राउजर सपोर्ट, ब्राउजर कई बार सपोर्ट कंसिस्टेंटली नहीं करता है। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टेड बैकग्राउंड पर एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि विथ सीएसएस you cannot specify more than one background images for each element, so this is one drawback. Okay, you can apply only one background with one element, तो ये भी एक, चलो कोई बात नहीं, ये इसको तो ओवरलुक किया जा सकता है। लैक ऑफ वेरिएबल्स, हाँ, यहाँ एक चीज आपको समझना है कि इससे पहले मैंने एक सवाल किया था, अगर आपको याद है, कि ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 6 है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। तो आपने सही जवाब दिया था 31, यही दिए थे ना। हाँ, सो वो ए और बी क्या है, वो वेरिएबल है और उसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट है वो स्टाइलिंग लैंग्वेज में नहीं आता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है। ठीक है, जैसे पाइथन, आपके बुक में है पाइथन, वो एक बढ़िया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें हम लोग वेरिएबल वगैरह यूज करते हैं। तो उस वेरिएबल यूज करने का एम क्या है, या व्हाई वी, व्हाट इज द नीड ऑफ वेरिएबल when you want to perform any calculation, mathematical calculation, at that time styling language is not going to help you, क्योंकि स्टाइल सिर्फ स्टाइल दिखाता है। ठीक है उसको मैथ्स नहीं आता। क्लियर? सो आपको अगर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना है। ठीक है, मतलब सीएसएस आपको वेरिएबल्स का फैसिलिटी नहीं देता है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी थ्रेट। अब ये क्या है भला सिक्योरिटी थ्रेट? Since CS is in an open text based system without any built-in security, सी, जब भी फ्री सॉफ्टवेयर की बात आती है या फ्री टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम की बात आती है तो वहां पर सिक्योरिटी जीरो होता है। ठीक है, क्लियर? तो सीएसएस का जो बनाया हुआ वेब पेज है वो HTTP होता है, HTTPS नहीं होता है। अगर आपको याद होगा HTTPS, HTTPS का फुल फॉर्म क्या होगा भाई? हाँ बताओ। आई एम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Hypertext Transfer Protocol. लास्ट में एस भी था, Security. HTTPS। Security. हाँ, तो CSS, Secured. हाँ सिक्योर। आप जो वेब पेज आप बनाओगे सीएसएस में उसमें HTTP डिस्प्ले होगा, ना कि HTTPS। ठीक है, तो वहां पर एक सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, वर्टिकल कंट्रोल लिमिटेशन। अब ये क्या है, ये थोड़ा टेक्निकल लिमिटेशन है। वर्टिकल limitations आर कॉलम डिक्लेरेशन में बी प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, टू सेंटर एन एलिमेंट वर्टिकली डेवलपर्स मस्ट राइट कॉम्प्लिकेटेड स्टाइल रूल्स। मतलब जैसे नॉर्मली हम लोग पी एलिमेंट का यूज करते हैं HTML में, फॉन्ट जो टेक्स्ट है उसका अलाइन सेट करने के लिए, है ना, पी के साथ अलाइन लिख के सीधा छोड़ देते हैं सेंटर या राइट या लेफ्ट, तो वो इजी है। लेकिन CSS में अलाइनमेंट का एक इशू है, और क्या इशू है, जब आप कोडिंग का यूज करोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना दिमाग में रखो कि एक लिमिटेशन है CSS का, अगर आपको अलाइनमेंट वगैरह चेंज करना है तो वो उसके लिए आपको कोड लिखना होगा, एंड विच इज बिट कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब हमको पता चलेगा बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज, सिंटैक्स। ठीक है, आई थिंक यू कैन सी सिंटैक्स ऑफ CSS। तो बेटा CSS का कोडिंग जो है इस तरह से होता है। ठीक है,
बिल्कुल नया तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो कोड लिखने का पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और यू कैन सी दैट हियर curly bracket is used instead of less than or greater than। ठीक है, shift right shift left। ठीक है, ये जो लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन है, इसके इंस्टेड पे, इसके जगह पे क्या यूज हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट। और ये जो कोडिंग है, कलर ब्लू फॉन्ट साइज 12 px, दिस इज द कोडिंग ऑफ CSS। और इसे आप बहुत बेसिक कोडिंग कह सकते हैं। और ये क्या है, H1। H1 is the element of HTML। क्लियर? अगर मैं पूछूं, heading. हाँ, हेडिंग एग्जैक्टली। अपार्ट फ्रॉम H1, what are the elements we have learned? Please list them। जल्दी जल्दी से बोलो। Sir, what? font size, Apart from H element, what we have learned in HTML? font size, Sir, font size, marquee, font space, BG marquee color, frame, BG color. color, marquee, Listen, 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 listen। frame, हाँ, आप लोग BR, टैग की बात कर रहे हो, आप लोग एट्रीब्यूट की बात कर रहे हो, मैं एलिमेंट पूछ रहा हूँ। ठीक है, देखो, H1 एक एलिमेंट है, P एक एलिमेंट है। sir, head, body, title. नहीं, हेड बॉडी। title, चलो मैं ही बता देता हूँ। TD। हाँ, ये हुई ना बात। कौन बोला भाई TD? TD एक एलिमेंट है, टेबल एक एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद लिस्ट बनाने के लिए आप लोग क्या यूज करते हो? li, ऑर्डर लिस्ट, OL, अनऑर्डर लिस्ट। लिस्ट के लिए OL यूज करना चाहिए। UL. और BR भी आएगा ना इसमें, तो BR भी आना चाहिए। ER। यार तो एम्प्टी टैग है ना। बेटा, आवाज बहुत धीरे है, एक बार थोड़ा जोर से बोलोगे? Sir, call span भी आ सकता है ना। वो बोल रहा है कि BR एम्प्टी टैग है। BR, हाँ बेटा, BR टैग हाँ सर। उसका असर टेक्स्ट पे नहीं पड़ता। एक बात को पहले समझ लो कि जैसे मैंने H1 लिखा, तो H1 का मतलब क्या होगा कि हम जो टेक्स्ट लिखेंगे वो हेडिंग 1 बनेगा। जब हम P उसका फॉन्ट साइज बढ़ा तो रहा P है। मतलब पैराग्राफ, और P के अंदर कुछ टेक्स्ट होगा पक्का, नहीं लिखते वो अलग बात है, लेकिन P का यूज किस लिए होता है कि एक टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं, उसका अलाइन हम सेट करना चाहते हैं, तो P का यूज करते हैं। टेबल का यूज क्यों करते हैं भाई? टेबल क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो ये जो टेबल, TD, PH, इन सब का इम्पैक्ट टेक्स्ट पे होता है। तो दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ऑफ कोर्स बाकी सब भी एलिमेंट्स है, लेकिन हमें अभी ध्यान देना है उन एलिमेंट्स को जिनमें कुछ टेक्स्ट जो है अप्लाई होता है। ठीक है, यस खुशी, आई हैव गॉट योर मैसेज। यस, राइट आंसर। राशि जैन, यस, Rashi has observed one difference, that is instead of is equal to, colon is used। Yes, correct, very good, keen observer। तो कलर इज इक्वल टू ब्लू नहीं लिखे हम लोग, कलर कोलन ब्लू, तो ऐसे हमको लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सिंटैक्स है, हाउ टू यूज और कहाँ यूज करना है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें मिल रहा है बेसिक सिलेक्टर इन CSS। अच्छा, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। पीछे जाने के बाद हम यहाँ पर जो हम देखे हैं H1। ठीक है, H1 हमारे लिए HTML के लिए क्या है? HTML के लिए एक एलिमेंट है। ठीक है, सिंपल। और CSS में इसको क्या बोलेंगे? सिलेक्टर। ठीक है, इट इज वेरी हार्ड टू राइट विद द माउस, एलिमेंट। तो H1 is element in HTML, but it is selector in CSS। और जो भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो, उस फॉर्मेटिंग को कर्ली ब्रैकेट में रखना है, एंड दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। ठीक है, तो सिलेक्टर, डिक्लेरेशन, ये दो चीज आपको दिमाग में रखना है। सिलेक्टर कुछ भी हो सकता है, H1 हो सकता है, OL हो सकता है, LI हो सकता है, TD हो सकता है, TR हो सकता है, और क्या छूट गया भैया? बस ये तो है ही। चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिक सिलेक्टर्स इन CSS। तो
तो जो एलिमेंट है उसे हम लोग CSS में सिलेक्टर कहते हैं, सिंपल सी बात है. I don't think you will face any kind of trouble to understand. The basic structure of a CSS style sheet contains selectors in and their attributes. ठीक है, वही सिंपल सी बात है. जो ग्रीन कलर ब्लू फॉन्ट साइज 12 px लिखा है, ये सब क्या है? एट्रीब्यूट है. ठीक है, ओके. और एक चीज आप ये भी ध्यान दिए होंगे कि प्रॉपर्टी वैल्यू फॉन्ट साइज ये हमारे स्टाइल का प्रॉपर्टी है. मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारे वेब पेज में जितने भी फॉन्ट है, जितने भी टेक्स्ट है, उसका प्रॉपर्टी जो है, उसका प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या हो? 12 px, 12 पिक्सल. ठीक है. अच्छा, CSS के एक फायदा है. अभी हम लोग जब HTML में फॉन्ट साइज लिखते थे, उसमें चाहे 10 लिखो या 12 या 15 या 20 या 72, उसका फॉन्ट साइज एक पर्टिकुलर साइज में ही बढ़ता या घटता था. लेकिन CSS आपको फॉन्ट साइज को अपने हिसाब से कम ज्यादा करने का, मतलब इट अलाउज यू टू चेंज फॉन्ट साइज अकॉर्डिंग टू योर नीड. ठीक है, ओके. चलो, हाँ, आगे क्या है? नेक्स्ट लाइन, अ सिलेक्टर इज द नेम ऑफ द एलिमेंट टू विच अ स्टाइल इज अप्लाइड. वही बात है, सेम बात. By using selectors, different formatting rules are created within the style sheet, and then these rules are implemented on HTML elements. तो ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है examples, oh my god, 10 मिनट बचा है, हो जाएगा. So ये जो examples दिख रहे हैं, these are called basic selectors. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे हमारे लिए क्या वेट कर रहे हैं? आगे हमारे लिए वेट कर रहे हैं कुछ 4 टाइप के सिलेक्टर्स जो कि CSS में यूज होगा. पहला है यूनिवर्सल सिलेक्टर. व्हेन आई से यूनिवर्सल, दैट मींस इट इज क्या बोलना चाहिए, ओमनी प्रेजेंट और ओमनी एप्लीकेबल बोल सकते हैं. ठीक है, अब इसका यूज समझ लो. अगर आप चाहते हो कि आपके पूरे वेब पेज में जितने भी टेक्स्ट है उसका कलर ग्रीन हो, उसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल हो, हाँ, उसका जो फॉन्ट नेम है जैसे कैलिब्री, मोनोटाइप, कॉर्सिवा या कॉमिक सेंस, MS, ये सब में आपके पूरे वेब पेज में सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो, तब आप यूज करोगे यूनिवर्सल सिलेक्टर का. कैसे यूज करना है वो तो अभी बताऊंगा मैं, डोंट वरी, अगर आज टाइम मिल जाता है तो. नेक्स्ट क्या है? टाइप सिलेक्टर. टाइप सिलेक्टर मतलब पर्टिकुलर कोई एलिमेंट पे आप जब कोई पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो, व्हेन यू वांट टू अप्लाई अ पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग ऑन अ पर्टिकुलर एलिमेंट, दैट टाइम यू नीड टू यूज टाइप सिलेक्टर. जैसे कि यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल H1 के लिए दिया गया है. ठीक है, तो मैं इसे बदल भी सकता हूं. मैं इसे अगर P कर दूं, H1 की जगह मैं P कर दूं, तो जहां जहां मैं P एलिमेंट का यूज करूंगा वहां वहां ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा. तो हुआ ना काम आसान. आपको बार बार ये सेम फॉर्मेटिंग को लिखना नहीं है, आपको बस एक बार लिखना है. ठीक है, तो यहाँ पर आप फॉर्मेटिंग को भी समझ लो. फॉन्ट वेट, बोल्ड मतलब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हम करते हैं, है ना. फॉन्ट फैमिली जैसे हम लोग HTML में फॉन्ट फेस लिखा करते थे, है ना, याद आया क्या? फॉन्ट चेंज करने के लिए हम लोग फॉन्ट फेस यस, है ना. लेकिन यहाँ पर आपको फॉन्ट फैमिली लिखना है. और बोल्ड इटैलिक के लिए तो हम लोग डायरेक्ट टैग लिखते थे हम लोग. तो यहाँ टैग नहीं लिखना है आपको, फॉन्ट वेट लिखना. ठीक है, फॉन्ट फैमिली एरियल और कलर रेड. कलर बस बदला नहीं है, जैसा का तैसा ही है. तो ये फॉर्मेटिंग जितने बार आप H1 का यूज करोगे अपने HTML में अप्लाई हो जाएगा. आपको बस एक बार लिखना है. नेक्स्ट क्या है? क्लास सिलेक्टर. क्लास सिलेक्टर क्या है? यूज टू अप्लाई CSS स्टाइल फॉर अ ग्रुप ऑफ HTML एलिमेंट्स. हाँ, जैसे भाई हम लोग सेक्शन बांट देते हैं, 10th A, 10th B, 10th C. हो तो आप सभी 10th के ही, लेकिन कुछ लोग 10th A में है, कुछ B में है, कुछ C में है. तो वैसे ही आप HTML में सपोज PPP पैराग्राफ के लिए एक क्लास बनाना चाहते हैं, H1, H2, H3 के लिए अलग क्लास बनाना चाहते हैं, टेबल के लिए अलग क्लास बनाना चाहते हैं.
तो जहां जहां भी H1 H2 H3 यूज होगा उसके लिए अलग फॉर्मेटिंग, जहां PP यूज होगा उसके लिए अलग फॉर्मेटिंग। तो और यू कैन ऑल्सो कंबाइन देम, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड क्लास सिलेक्टर, इसको भी देखेंगे ऑफ कोर्स। लास्ट में क्या है, आईडी सिलेक्टर। आईडी आपका आईडी कार्ड होता है फॉर योर आइडेंटिफिकेशन। तो आईडी सिलेक्टर का जो यूज है वो क्या आता है कि दिस आईडी सिलेक्टर, sorry, the ID selector uses the ID attribute of an HTML element to select a specific element. आपने एक स्टाइल डिजाइन किया, एक फॉर्मेटिंग डिजाइन किया और उसका एक आईडी आपने दे दिया, कोई भी नाम से, आप कुछ भी नाम से आईडी दे सकते हो। तो आपको उस आईडी को जस्ट एलिमेंट के साथ यूज करना है। तो उस आईडी में जो फॉर्मेटिंग है वो आपके एलिमेंट में अप्लाई हो जाएगा। मैं एक बार और ट्राई करता हूं इसको क्लियरली समझाने के लिए। आप बना रहे हो डिजाइन या स्टाइल, स्टाइल तो हम समझ ही गए आप, जैसे फॉन्ट साइज, कलर, ये सब क्या है, स्टाइल है। तो आपने एक स्टाइल डिजाइन किया और उसका आप एक आईडी दे दिए, सपोज #001। तो ये आपका आईडी हो गया। अब उस #001 को अगर आप किसी एलिमेंट में यूज करते हो तो उस #001 में जो आपने स्टाइल सेट किया वो अप्लाई हो जाएगा। गॉट इट? तो आई थिंक इसमें से लगभग सभी यूजफुल है, ठीक है। जिनको थोड़ा सा काम कम करना है तो वो यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बार में सबका काम कर देगा। जिनको थोड़ा स्पेसिफिक होना है, नहीं मेरा हेडिंग अलग दिखना चाहिए, पैराग्राफ अलग दिखना चाहिए, तो वो टाइप सिलेक्टर का यूज करें। जिनका वेब पेज बहुत बड़ा है, काफी मतलब हेवी वेब पेज है, उनके लिए क्लास सिलेक्टर काम आएगा। और आईडी भी जिनको काफी हेवी वेब पेज बनाना है उनके लिए काम आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है मेथड्स ऑफ अप्लाइंग सीएसएस। तो दो तरीका, एक होता है इनलाइन और दूसरा होता है इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट। तो इनलाइन में क्या होता है, इनलाइन में हम एलिमेंट के साथ ही जो स्टाइल है उसका यूज करते हैं और डायरेक्ट डिक्लेरेशन लिख देते हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन मतलब, शैल आई शो यू वंस अगेन, ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है इसे हम लोग एलिमेंट के साथ ही लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड इनलाइन। हालांकि इसका यूज बहुत कम होता है। मुझे सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है तो मैं बार बार एलिमेंट के साथ क्यों लिखूं, क्यों ना मैं उसे पर्टिकुलर वन टाइम के लिए लिखूं, ठीक है। तो उसके लिए आपके काम आएगा इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट। इसमें यह होता है जब आप हेड ओपन करते हो HTML में, हेड ओपन करने के बाद आप टाइटल लिखते हो, तो लिख दो, कोई बात नहीं, आप टाइटल लिख दो। उसके बाद हेड के अंदर ही आपको ये टैग यूज करना है, ठीक है। CSS में कैस्केडिंग आपको कहीं नहीं लिखना है, आपको लिखना है स्टाइल, उसके बाद टाइप, फिर इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। इसका मतलब ये है कि आप जो स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो वो किस पे अप्लाई होगा, टेक्स्ट पे अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन मतलब आपका फॉर्मेटिंग। तो आप कई लेयर में डिक्लेरेशन दे सकते हैं। आप H के लिए डिक्लेरेशन दो, आप P के लिए डिक्लेरेशन दो, आप लिस्ट के लिए डिक्लेरेशन दो। उसके बाद स्टाइल क्लोज, हेड क्लोज। तो इस सिंटेक्स को बहुत ही अच्छे से याद रखो, ठीक है। डोंट फॉरगेट दिस स्ट्रक्चर। और इसे हम बॉडी में नहीं लिखेंगे, है ना। एक बात याद रखना, जो CSS का कोडिंग है वो हम हेडिंग के अंदर लिखेंगे, ठीक है। क्लियर? सो गिव मी रिस्पॉन्स प्लीज इफ इट इज क्लियर, एंड आई डोंट Yes, sir, clear. एबल टू स्टार्ट द कोडिंग। नेक्स्ट क्लास हम कोडिंग शुरू कर देंगे, ठीक है। ओके, Yes, sir. you can Okay, do sir. one thing, my dear students, you can do one thing. You can prepare one web page। मतलब आपने तो प्रोजेक्ट बना लिया, कोई बात नहीं, एक अलग से एक वेब पेज आप डिजाइन करके रख सकते हो विदाउट एनी फॉर्मेटिंग, ठीक है, विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। और उस वेब पेज में पैराग्राफ होना चाहिए, बुलेट नंबरिंग का यूज होना चाहिए, टेबल होना चाहिए, बस इतना। अगर आप एक अलग से वेब पेज बना के रख देते हो तो CSS का यूज आप लगे हाथ कर लेना। मतलब जब मैं बताऊंगा एट दैट टाइम यू कैन डू द प्रैक्टिकल, दोज हु आर हैविंग लैपटॉप और डेस्कटॉप, ठीक है। तो it will be easier to understand, okay।
Okay, then it is time to say bye. See you soon. Next class. Bye. Thank you, sir. हाँ बेटा, Thank most you, welcome, sir. most Thank you, welcome. sir. Thank you, sir. Yes, बेटा, most welcome. Bye, sir. Thank you, sir. हाँ बेटा, bye bye bye. Good day.